Welcome friends. We'll start with next topic of operations management. The name of topic is supply chain management. So in this class, what we'll do, we'll start with understanding of what is supply chain management, SCM. Then we'll understand two models of supply chain management, which are push model and pull model. Then we'll look at a very well-known effect, which is which you will find in every book of supply chain management, which is known as bullwhip effect. We'll know what is bullwhip effect is. And finally, there are some of the practices which are used to ensure we have a world-class supply chain management. So we'll look at some of those practices. So this is the agenda for this class, and let's get started. सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है. व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट? ओके, सो गाइस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज. मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल toward satisfied customer. So whatever activities we do, starting from the procurement of raw material up to delivering it and finally making sure that our customer is happy. So all sort of activities during this entire chain is known as supply chain management. Okay. So for example, I have a setup and in this setup, maybe I am manufacturing something, or maybe I am assembling something. Okay. So this is a setup which I'm having. This is a plant which I'm having, or this is a area where I'm producing services also, because supply chain management concepts are equally applicable to services as well as goods. So this is my setup where I'm making some product, or I am assembling products and then making up a final product. So because I'll be manufacturing a product, so for this product I'll be taking some raw material, and this raw material will come from some supplier. This raw material will come from some supplier. It might also happen this supplier is taking raw material maybe from some other supplier, and then it is coming to us. Okay. So guys, these suppliers at one level above us, they are known as tier 1 supplier. Okay. And these will be known as tier 2 supplier. Okay. So we'll get raw material from some supplier. Now those supplier can be tier 1 supplier or tier 2 supplier. It will come to us. We'll do some sort of manufacturing or making the product. Okay. Then this product will go to maybe some warehouse. It will go to some warehouse. Okay. From warehouse, it will go to some warehouse. Okay. Warehouse. So maybe this will go to some warehouse. Okay. From warehouse, it might go to some retailer or maybe wholesaler. So maybe first with wholesaler, then maybe retailer, or directly with the retailer, and finally it will go to customer. So from warehouse, it will go to wholesaler or maybe retailer, and finally it will go to the customer. Okay. So guys, all sorts of activities from our raw material, obtaining the raw material from our supplier, finally up to customer, is nothing but supply chain management. Now guys, so supply chain management में हम लोग जो हमने एरो बनाए इतने सारे, so what flows through these arrows? इन एरो से हम what goes from upstream to downstream? Okay, before that, what is upstream? So जितना मैंने ग्रीन में मार्क किया है, so these are upstream activities. Upstream मतलब जहां से मुझे चीजें मिलती हैं. ठीक है. And whatever is in red, these are downstream activities. So these are downstream activities. So upstream and downstream. ठीक है. Now guys, अब upstream से downstream में जो flow क्या करता है? So what flows? Okay. So supply chain में, of course, first thing which come to our mind, maybe these are some goods or material. Then it is also applicable to services. Then also information flows.
Okay, and then yeah, goods, services, and information, all of them flow from raw material up to the final customer, and this entire concept is known as supply chain management. So एक बार दोबारा से बात करते हैं, supply chain management क्या हुआ कि रॉ मटेरियल से लेके अप टू सेटिस्फाइड कस्टमर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, दे आर नथिंग बट टुगेदर दे आर नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो बट इंफॉर्मेशन आल्सो फ्लो फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू another participation of another participant of the supply chain management. ठीक है. अब guys, so this is a very this is a very ट्रेडिशनल वे ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है, लेकिन समटाइम्स एंड दिस इज लाइक फॉरवर्ड गोइंग, पहले सप्लायर से हमारे पास आया, हमसे वेयर हाउस, होलसेलर एंड कस्टमर. ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि द प्रोडक्ट फ्लोज बैकवर्ड्स, कि कस्टमर से एक प्रोडक्ट वापस हमारे पास आ रहा है, कस्टमर से वन प्रोडक्ट इज कमिंग बैक टू अस. और ऐसा कब होगा? सो मे बी इन केस ऑफ मे बी इफ गुड्स आर बीइंग रिटर्न, राइट? सो आप फ्लिपकार्ट या अमेजन को आप अपना गुड्स रिटर्न करते हो समटाइम्स, राइट? और मे बी समटाइम्स फॉर रीसेल और मे बी फॉर रिसाइकल. Okay, so these are the scenarios where the material flows towards upstream from downstream towards upstream. So in simplified language, now material is flowing from customer to seller or customer to manufacturer. Okay, so this concept is known as, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स. रिवर्स मतलब उल्टा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स. एंड दिस इज वेरी वेल नोन. अच्छा, समटाइम प्रोडक्ट इज आल्सो रिकॉल्ड, राइट? कई बार आपने देखा होगा कि देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन अ कार एंड देन ऑल कार्स ऑफ दैट बैच और दैट मेक दे आर टेकन बैक. इट आल्सो हैपन इन केस ऑफ मेडिसिन्स, राइट? So reverse logistics is also applicable in case of what? In case of when product is recalled, maybe because of some manufacturing defect. So this thing is known as reverse logistics. So guys, अब reverse logistics ने हमें क्या बताया कि some goods are or services are flowing back. Some goods or services are flowing back. So अगर हमारा supply chain हमने ऐसा बनाया है that it has capability of both forward flow of material as well as reverse flow of material. अगर हमने अपना सप्लाई चेन ऐसा बनाया है, then this is known as closed loop supply chain. Okay, so guys, this is how we understand what supply chain management is, and this is how we define our supply chain management. So broadly we can also see supply chain to be कि supply chain management क्या है? So supply chain management is nothing but it is some sort of facilities जो हम लोग यूज कर रहे हैं, and there are some activities, some sort of facilities and some activities which we are using. अब मतलब facilities कौन सी हैं? Maybe our manufacturing plant or maybe where we are delivering and producing the services. It also includes supplier facilities. It also includes facilities at the downstream like warehouse. ठीक है? And so these are the facilities which are being managed in a supply chain management. Similarly, supply chain management में कुछ activities भी हम लोग करते हैं. अब वो कौन कौन सी activities हैं? So we forecast कि हमें based on demand how much our capacity or how much our production should be. Guys, mind it, production और capacity दोनों अलग अलग होते हैं. Okay, then forecasting करते हैं. उसके बाद we do the procurement किससे करते हैं हम? We do procurement of raw material. Then we do inventory management. Okay, उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? Then we do production बोलो या फिर manufacturing बोलो of goods or services, whatever we are producing. Then we also do scheduling and sequencing. Okay, then we also do distribution कैसे?
that after the product is finished, so how we distribute it. We also ensure quality assurance. Then we also ensure that we provide appropriate level of customer service. So these are the activities. So another way of supply chain management is, another way of looking at supply chain management is, supply chain management is nothing but management of facilities and some activities. Facilities and some activities. So this becomes my another definition of supply chain management. ठीक है. अब गाइज जो अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में there is another term which we generally use, which is known as logistics. अब guys logistics क्या है? Logistics क्या है? And how logistics is different from supply chain management. So guys, logistics is what? अब बात है कि लॉजिस्टिक्स क्या है. सो गाइस, व्हाट इज लॉजिस्टिक्स? सो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक्स क्या है? सो लॉजिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ठीक है. ओके, पहले लॉजिस्टिक्स में क्या क्या आएगा? सो व्हाट इज कवर्ड अंडर लॉजिस्टिक्स? So what is covered under logistics is transportation. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन के बाद मटेरियल हैंडलिंग. मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है? सो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन है कि एक प्लेस से दूसरी जगह अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना. मटेरियल हैंडलिंग है हैंडलिंग गुड्स विद इन द प्लांट फ्रॉम वन सेटअप, फ्रॉम वन you can say one machine to another, or one part of plant to another part. So material handling is within the plant. Transportation is from one place to another place. उसके बाद warehousing. ठीक है. उसके बाद inventory management. उसके बाद है अपना order fulfillment. Order fulfillment, now we know in this e-commerce is nothing but making sure that product is available. And of course reverse logistics is also involved. ठीक है. Okay. So this is what is known as logistics. So अब supply chain management से logistics में difference क्या हुआ? So the thing which are not covered in logistics but which are part of supply chain management is nothing but whatever we are producing or which we are making. So जो manufacturing या production का process है वो लॉजिस्टिक्स का पार्ट नहीं है. सो इन अ वे अब मैं लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन में कैसे डिफाइन कर सकता हूं? दैट माय सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज नथिंग बट इज लॉजिस्टिक्स प्लस जो मेरा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में करता हूं. सो दिस इज नोन एज लॉजिस्टिक्स. सो लॉजिस्टिक्स इज अ सब पार्ट ऑफ सप्लाई चेन. ठीक है. अब जो लॉजिस्टिक्स है, हम लॉजिस्टिक्स को भी फर्दर वी कैन ब्रेक डाउन. दिस लॉजिस्टिक्स कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन मे बी इनटू टू पार्ट्स. पार्ट वन कैन बी ट्रांसपोर्टेशन and part 2 can be distribution. So transportation is purely taking from one place to another, like using rail, road or air. And distribution में बाकी चीजें भी आएंगी, like warehouse, storing, inventory management, packaging. So logistics को भी आप फर्दर दो पार्ट में आप इसको तोड़ सकते हो. So अगर हम पूरा एक लार्जर पिक्चर समझने की कोशिश करें, so what is that picture guys? So ये मेरा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है. इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक छोटा पार्ट है मेरा इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, विच इज माय लॉजिस्टिक्स. ठीक है. एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आई हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. इस तरह. नाउ दिस इज द, ऑफ कोर्स सी गाइस, काफी बुक्स में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस हैं. लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस सब में ना काफी these are used interchangeably also. So this is one definition you can stick it to. लेकिन कुछ बुक्स में हल्का फुल्का वेरिएशन भी हो सकता है. Okay. So guys, now we understand what is supply chain management is, और बाकी जो टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं they are also we have understand those as well. ठीक है. Okay.
ठीक है गाइस, लेट्स मूव ऑन। और हम अब बात करते हैं किसकी, कि किसी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ सप्लाई चेन, और फिर हम उनके सॉल्यूशन या जो भी हम उनके एक करके उनकी बात भी करेंगे, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट चैलेंज ऑफ अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज कि दैट फेलियर ऑफ अ सप्लायर टू डिलीवर, मतलब हम हमें जो चाहिए हमें वो सप्लायर हमें डिलीवर ही नहीं कर पाया। तो इसके लिए व्हाट डू वी यूज, फेलियर ऑफ अ सप्लायर टू डिलीवर, इसके लिए व्हाट डू वी यूज क्रॉस डॉकिंग, या फिर व्हाट वी कैन आल्सो यूज इज दैट वी क्रिएट गुड SLAs. Okay, so we can use cross docking or you can use good SLAs. So guys, what is cross docking? Cross docking is nothing but making sure that for one item you do not depend upon no wait guys, एक काम करते हैं that let me tell you different concepts which are used in supply chain. उसके बाद challenges और उनके solution समझने में हमें ज्यादा comfortable होंगे हम लोग. So let us understand these concepts first, और उसके बाद हम we'll understand this slide. So हम challenges के बाद में आते हैं. पहले हम लोग समझ लेते हैं कि supply chain management कौन कौन से concepts हैं which are used, and then we can come to challenges. ठीक है, उसमें ज्यादा मजा आएगा. Okay, before that, let us go to what is push and pull model of supply chain. So guys, what is push model? पहले हम बात करते हैं push model की. So what is push model? So guys, push model का मतलब क्या है कि जो हम पुश मॉडल में कैसे काम करते हैं कि पहले हम अपना डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। पहले डिमांड को फोरकास्ट करेंगे, उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, विल प्रोड्यूस दैट और विल मेक दैट। उसके बाद हम उसको कहीं स्टॉक करेंगे एंड देन विल सेल इट। सो फर्स्ट वी फोरकास्ट दैट डिमांड के बेस पे हम वी डिसाइड कि हाउ मच प्रोडक्ट टू मेक। उसके बाद हम उसको मेरा उसमें सेव करेंगे, उसको सेव बोल रहा हूं, उसको स्टॉक करेंगे एंड देन विल सेल इट। सो दिस इज नथिंग बट मेक टू स्टॉक का मतलब है कि कहीं रखने के लिए वेयर हाउस में स्टॉक करने के लिए हम प्रोडक्ट को बनाते हैं बेस्ड ऑन कि कितना डिमांड हम पहले एंटिसिपेट करते हैं, देन विल सेल इट, ठीक है। सो हमने पहले प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। ऑन द अदर हैंड पुल मॉडल क्या करता है गाइज, व्हाट इज पुल मॉडल? पुल मॉडल क्या करता है कि पहले वी रिसीव द डिमांड देन वी मेक द प्रोडक्ट। पुश मॉडल में हमने क्या किया, पहले हमने प्रोडक्ट को मेक कर लिया based on some expected demand and then we'll sell it. But in case of pull model, we first receive the demand. पहले हमें एक ऑर्डर आ चुका है, okay, then we produce it and then we deliver it. So this will be nothing but make to order. So दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि पुल मॉडल में कस्टमर प्रोडक्ट को पहले पुल करता है, मतलब कस्टमर डिसाइड करता है पुल मॉडल में कि कब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। जब कस्टमर का हमारे पास ऑर्डर आ गया, उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं एंड देन वी डिलीवर इट टू देम। दिस इज नोन एज पुल मॉडल। पुश मॉडल क्या है, हमने पहले बना के रख लिया है एंड देन वी पुश इट टू कस्टमर। सो गाइस, व्हेन वी पुश द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, पुश मॉडल। और जब कस्टमर खुद प्रोडक्ट को पुल करता है अपनी तरफ, वन कस्टमर खुद ऑर्डर प्लेस करता है और उसके बाद ही हम बनाते हैं, दैट इज नोन एज पुल मॉडल व्हिच इज नोन एज मेक टू ऑर्डर। सो पुश मॉडल को बोलते हैं मेक टू स्टॉक। ये काफी क्लियर है इन कीवर्ड से। मेक टू स्टॉक मतलब बना के हमने वेयर हाउस में रख लिया, ठीक है। और पुल मॉडल का मतलब ऑर्डर हमें मिल गया, उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट बनाया। अब जो पुल मॉडल है गाइज, इसको हम अचीव कैसे करते हैं, मतलब ऐसा। So what do we use to make sure that we are able to use the pull model? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? So we use some quality management concepts, one of which is JIT, just in time। just in time का मतलब है कि in time ही हम
on that time only we'll do everything in the sense कि कस्टमर का ऑर्डर हमारे पास आएगा, उसी टाइम हम अपने सप्लायर से लेंगे. आवर सप्लायर हैज गॉट वेरी क्लियर पिक्चर कि हमारे पास कब कितना ऑर्डर है, सब अकॉर्डिंगली, एंड सप्लायर्स आर वेरी क्लोज टू अस. और उसी टाइम सप्लायर हमें अपना रॉ मटेरियल जो भी हमें चाहिए वो हमें देगा, हम उसको जल्दी से असेंबल करेंगे या मेक करेंगे, एंड देन विल सेंड इट टू कस्टमर. नाउ ऑल दीज थिंग्स विल हैपन आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर. पहले हम बना के नहीं रखेंगे. सो जस्ट इन टाइम इज वन एग्जांपल. ऑफ कोर्स वी आल्सो विल हैव अ डेडिकेटेड क्लास ऑन जस्ट इन टाइम, जिसमें हम लीन प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. बट यहाँ जस्ट इन टाइम का मतलब तुम इतना ही समझ सकते हो कि ऑर्डर रिसीव करने के बाद जस्ट इन टाइम को यूज करके हम लोग वी यूज द पुल मॉडल, एंड एट दैट पॉइंट टाइम ओनली हमें जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, जितने भी सप्लाई चाहिए, वी टेक इट ओवर फ्रॉम सप्लायर्स. ओके. इस जस्ट इन टाइम को अचीव करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड टेक्नोलॉजी. सो वी यूज ईडीआई. ईडीआई इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ठीक है. देन वी आल्सो यूज सीएओ. CAO is what? कंप्यूटर असिस्टेड ऑर्डरिंग. अब गाइज ये सब चीजें हम टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करने क्या कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया उसी टाइम वी हैव द विजिबिलिटी. तभी पुल मॉडल काम करेगा, राइट? कि जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया, कहां? सो लेट्स गो बैक टू अवर सप्लाई चेन. ठीक है. सो अगर कस्टमर ने यहां ओके, तो कस्टमर ने यहां जब भी ऑर्डर दिया कस्टमर ने, सो वी हैव गॉट वेरी फास्ट, वेरी क्विक विजिबिलिटी ऑफ दैट एट अवर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप. तभी हम उसको एकदम बनाएंगे. तभी एकदम विजिबिलिटी आएगी, तभी हम सप्लायर को बोलेंगे जल्दी से हमें अपना रॉ मटेरियल दो इस वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए. सो एवरीथिंग इज डन जस्ट इन टाइम. अब टू एंश्योर ऑल दीज थिंग्स कि कस्टमर का ऑर्डर हमें जल्दी से रिफ्लेक्ट हो गया है, हमें रॉ मटेरियल मिल गया, वी आर मेकिंग एवरीथिंग, वी यूज डिफरेंट technologies, and one of which is EDI, which is electronic data interchange, and second one which we use is CAO. CAO is nothing but computer assisted ordering. अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या है गाइज? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अपनी सप्लाई चेन में, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जैसे कि जो हमारे जितने भी अपने हैं, जैसे कि हमारे जो सप्लायर हैं नंबर 1, हमारे जो वेयर हाउस मैनेजर हैं, हमारे जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या हमारे कस्टमर है, इन सभी के बीच में वी हैव गॉट आईटी सिस्टम्स व्हिच आर कनेक्टेड टू ईच अदर. देयरफॉर डेटा इज बीइंग शेयर्ड ऑन द स्पॉट इंस्टेंटेनियसली, एंड डेटा इज बीइंग शेयर्ड इन द रियल टाइम, एंड वी हैव across the entire chain we have complete transparency of the data कि कहाँ कितना ऑर्डर है, कहाँ कितनी डिमांड है, कहाँ क्या है. फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया. अब हम अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो हमारे जस्ट इन टाइम में विद ईडीआई एंड एवरीथिंग ऐसा नहीं होगा कि हम फिर सप्लायर को बोलेंगे कि कस्टमर का ऑर्डर आ गया, मुझे रॉ मटेरियल दो. नहीं, बिकॉज अवर सिस्टम इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू सप्लायर. तो सप्लायर खुद से ही बिना हमारे कहे हमें रॉ मटेरियल भेज देगा फॉर दैट प्रोडक्ट, या फिर उसके कंपोनेंट्स पार्ट हमारे पास भेज देगा, क्योंकि जैसे कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उसी टाइम उसका विजिबिलिटी हमारे सप्लायर के पास भी था. तो सप्लायर हमारे बोलने का वेट नहीं करेगा कि मैं रॉ मटेरियल अभी दे देता हूं, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड अक्रॉस द एंटायर चेन इन द रियल टाइम. कूल. So this is how we achieve what? This is how we achieve कि पुल मॉडल कैसे काम करता है. So guys, जो पुश मॉडल था, this push model was ट्रेडिशनल मॉडल, जो पहले था ट्रेडिशनल मॉडल. ठीक है. लेकिन पुल मॉडल आजकल हम लोग जो these days what we are trying to achieve, और कैसे? by using different technologies like EDI, CAO, ERP, POS. What is POS? पॉइंट ऑफ सेल, जो डिवाइस पॉइंट ऑफ सेल जो दुकान पे रखा रहता है, दैट डिवाइस थ्रू विच डेटा गोज कि कब क्या ऑर्डर आया एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस इज नोन एज POS डिवाइस. सो दैट डेटा इज शेयर्ड इन द रियल टाइम. सो दीज आर पुल मॉडल, पुश मॉडल. बस समझना कि पुश मॉडल में मैन्युफैक्चरर इज पुशिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. पुल मॉडल, कस्टमर इज पुलिंग द प्रोडक्ट. ओके.
सो गाइज अब ना कुछ सप्लाई चेन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। दे आर VMI, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, CPFR, collaborative planning, forecasting and replenishment, postponement, EDI, drop shopping, e-procurement, SCOR, green SCM, 3PL, cross docking, disintermediation and bullwhip effect. सो हम ये एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। इसमें सबसे ऑफ कोर्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अगर हमने क्लास किया और बुलविप इफेक्ट की हमने बात नहीं की तो वैसे ही हमने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो सबसे पहले हम बुलविप इफेक्ट की ही बात कर लेते हैं कि बुलविप इफेक्ट होता क्या है। ओके, सो गाइस अब जैसे हमारी एक सप्लाई चेन है, ठीक है, हमारी सप्लाई चेन में क्या है कि हमारी सप्लाई चेन में हमारी सप्लाई चेन में क्या है, हमारी सप्लाई चेन में हम हैं। हम कौन है? मैन्युफैक्चरर हैं या सेलर हैं? मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। हमारा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट कहां जाता है? विल वी गिव इट टू होलसेलर। होलसेलर किसको देता है? रिटेलर। रिटेलर किसको देता है? शॉपकीपर, या इसको कुछ भी तुम लोग बोल लो, ठीक है। ये किसको देता है? अपने कस्टमर को। ओके, अब गाइज होता क्या है कि ठीक है कि रियल लाइफ में कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, ठीक है। कस्टमर अपना ऑर्डर देता है शॉपकीपर को, शॉपकीपर बताता है अपने ऑर्डर रिटेलर को, रिटेलर किसे बताता है? होलसेलर को, होलसेलर बताता है मैन्युफैक्चरर। सो दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज अबाउट व्हाट? अबाउट कितना डिमांड है। कस्टमर से शॉपकीपर, शॉपकीपर से रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर। इस तरह द इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड फ्लोज फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर इन द सप्लाई चेन। एक एक करके ऐसे फ्लो करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब गाइस डिमांड इस तरह डिमांड का डेटा अपने पास फ्लो करता है, ठीक है। अब ये जो डिमांड का डेटा है इसमें गाइस होता क्या है, ठीक है, कि जो करेक्ट डिमांड है ना वो मैन्युफैक्चर तक नहीं पहुंच पाती। जैसे कि अब जो कस्टमर ने शॉपकीपर को जो डिमांड दिया, सो मे बी कस्टमर ने शॉपकीपर को कहा कि मुझे 50 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे 50 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर अपना जो डिमांड है वो जो रिटेलर को बताता है वो कुछ अपनी तरफ से उसको इन्फ्लेट कर देता है, ठीक है। सो शॉपकीपर प्रोबेबली टेल कि मुझे 70 चाहिए, एंड आई विल टेल यू रीजंस कि शॉपकीपर ऐसा क्यों करता है। अब रिटेलर क्या करता है? वो अपनी तरफ से उसको इन्फ्लेट कर देता है डिमांड को। अब नाउ इट कैन गो डाउन आल्सो, ऐसा नहीं कि ज्यादा ही बढ़ा, कम भी कर सकता है वो। तो मे बी आई एम गोइंग ऑन वन साइड की हर आदमी बढ़ाता जा रहा है, तो रिटेलर बोलता है 100 और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बोल देता है 150। सो जो एक्चुअल डिमांड था प्रोडक्ट का वो था 50, लेकिन मैन्युफैक्चरर को क्या इंफॉर्मेशन आया कि मुझे 150 बनाना है। क्योंकि पूरी चेन में जितने भी एंटिटी हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, एवरीबडी केप्ट ब्रिंगिंग सम वेरिएशन इन द डिमांड, वो उसको कम ज्यादा करता चला गया, ठीक है। अब ऐसा ये लोग क्यों करते हैं बीच में? ये लोग क्या, इसके ना कई इसके कई कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि उसने जो अपना फोरकास्टिंग किया वही इनएक्यूरेट था। किसी भी पार्टिसिपेंट ने जो फोरकास्टिंग किया वो इनएक्यूरेट था। सेकंड कारण कि डिले इन शिपमेंट, कि मैं ज्यादा ऑर्डर दे देता हूं एनीवे बिकॉज देयर इज डिले इन द शिपमेंट। प्रोडक्ट को आने में विच इज नोन एज अ लीड टाइम, प्रोडक्ट को आने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? लीड टाइम। देयर इज वेरी हाई लीड टाइम, देयर इज अ डिले इन द शिपमेंट, इसलिए मैं ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देता हूं अभी से देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। देन समटाइम्स इट माइट बी ओवर रिएक्शन टू स्टॉक आउट। इसका मतलब क्या है कि बीच में पार्टिसिपेंट को लगता है कि मेरा सामान खत्म हो जाएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा, तो मैं ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देता हूं देन व्हाट एक्चुअल डिमांड इज, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बैचिंग। ऑर्डर बैचिंग का मतलब क्या है? ऑर्डर बैचिंग किसके लिए होता है? फॉर क्वांटिटी डिस्काउंट, ठीक है। अब अगर क्वांटिटी डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर रिटेलर शॉप या होलसेलर रिटेलर को बोलता है कि अगर तुम 50 पैकेट लोगे तो मैं एक पैकेट तुम्हें लगाऊंगा 10 रुपए का मैगी का, लेकिन अगर तुम 80 पैकेट लोगे तो मैं एक पैकेट 9 रुपए का लगा दूंगा।
Now, because retailer wants to take advantage of reduction in price that comes with the higher quantity, तो उस प्राइस का फायदा उठाने के लिए रिटेलर ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देता है देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड. दिस नोन एज ऑर्डर बैचिंग. एंड ये कब होता है? व्हेन वी वांट टू अवेल द क्वांटिटी डिस्काउंट. कई बार ये वाला आदमी इसलिए भी करता है बिकॉज यू वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. मतलब पर यूनिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? दैट पर यूनिट कॉस्ट विल कम डाउन एज वी विल बी मेकिंग हायर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. फिर देयर आर फ्यू मोर रीजंस. कई बार सेल इंसेंटिव्स होते हैं. सेल इंसेंटिव अगेन इट्स लाइक क्वांटिटी डिस्काउंट ओनली, कि अगर आप हमसे ज्यादा खरीद लोगे तो हम आपका और आपकी पूरी फैमिली का बाली का ट्रिप या साउथ अफ्रीका हम आपको गोवा हम आपको घुमाने लेके जाएंगे 5 दिन के लिए. वहां होटल में रहोगे पूरा परिवार, तो वो ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं देन व्हाट एक्चुअल डिमांड इज. कई बार दिस कैन आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्लियरली ठीक से नहीं बताया कितना डिमांड था. देन समटाइम्स इट आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज शॉर्ट गेमिंग. अभी शॉर्ट गेमिंग क्या है? शॉर्ट गेमिंग ये है कि रिटेलर को पता है कि मैन्युफैक्चरर को जितना मांगता हूं ना मैं, उससे मुझे कम ही देता है. अगर मैं 100 मांगता हूं तो मुझे 50 ही देता है. तो मुझे 100 चाहिए तो मैं 200 का ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, एनीवे तो मुझे कम ही देगा, तो मैं ऑर्डर ही ज्यादा का प्लेस कर देता हूं थिंकिंग दैट वो मुझे देता तो हर बार कम ही है. दिस नॉट एज शॉर्ट गेमिंग. अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस गाइज देर इज वेरी हाई वेरिएशन. अच्छा, अनदर रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, एक रीजन और क्या हो सकता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन. गाइस को समझ लो, बुलविप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि शायद प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं अभी से ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर देता हूं देन व्हाट एक्चुअल डिमांड इज. सो नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस होता क्या है, देयर इज वेरी हाई वेरिएशन इन द डिमांड. अब ये सारे रीजन इन सारे मल्टीपल प्लेयर्स पे एप्लीकेबल होते हैं, 1 2 3. अगर अपनी सप्लाई चेन में ज्यादा प्लेयर तो मे बी मोर देन दिस, तो हर आदमी अपना इफेक्ट को मैग्नीफाई करता रहता है. ठीक है. सो जो हमारा ऑर्डर का इंपैक्ट था, स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फिर देन होलसेलर, जो मैंने अभी सप्लाई चेन का एक चेन मैंने बनाया, देन रिटेलर, देन शॉपकीपर, देन मे बी कस्टमर. ठीक है. तो हर आदमी अपना ऑर्डर में वेरिएशन लेके आता रहता है. वेरिएशन का मतलब है, और ये वेरिएशन भी ना मैग्नीफाई करती रहती है. कैन यू सी गाइस हो क्या रहा है? एंड इट विल कीप मैग्नीफाइंग. सो जैसे जैसे मैं डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम आता जा रहा हूं, दिस इफेक्ट इज गेटिंग मैग्नीफाइड. सो जो ये वेरिएशन इन डिमांड है, इट कीप्स गेटिंग मैग्नीफाइड. So this magnification of variation of demand as we go upstream in our supply chain is known as bullwhip effect. This is known as bullwhip effect. ठीक है. अब गाइज इस बुलविप इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, I'll come to that. ठीक है. उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम लोग यूज करते हैं. देन I'll again come back to it कि इस बुलिप इफेक्ट को ठीक कैसे करना है. सो गाइस इसके लिए हम लोग करते क्या है, विल कम टू दैट. अभी हमने क्या समझ लिया कि बुलिप इफेक्ट होता क्या है. ठीक है. अब जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं जो ये वाले हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद पोस्टपोनमेंट. सो गाइस व्हाट इज पोस्टपोनमेंट? सो पोस्टपोनमेंट का मतलब है कि हमें जो प्रोडक्ट के कस्टमाइजेशंस हैं, विल डू देम डाउनस्ट्रीम इन द वैल्यू चेन. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ओके, फॉर एग्जांपल अब मैं ओके, नाउ आई एम मेकिंग अ फोन. ठीक है. एंड दैट फोन हैज ओके मे बी आई एम अ कंपनी विच इज मेकिंग अ फोन. ठीक है. एंड आई एम मेकिंग माई फोन कहाँ, मे बी साउथ कोरिया. ठीक है. अब मुझे सारे फोन डिफरेंट कंट्रीज में भेजने हैं. अब हर कंट्री का जो चार्जर का वो है पॉइंट है,
जो इलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पिन है वो, ठीक है, द वे इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, किसी में 3 पिन है, किसी में स्क्वायर पिन है, किसी में कैसा, हर कंट्री का वो अलग अलग है, एंड यू विल रियलाइज इट एंड आई एम श्योर यू नो इट इफ यू हैव ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज। सो पोस्टपोनमेंट का मतलब है कि मैं हर कंट्री के जो चार्जिंग के प्लग हैं, आई डोंट मेक देम इन साउथ कोरिया ओनली, मैं साउथ कोरिया में बस फोन का एक कोर बनाता हूं, एंड ऑल दीज कस्टमाइजेशंस आर डन एट द इंडिविजुअल कंट्री लेवल, रादर देन हर कंट्री का चार्जर मैं साउथ कोरिया में ही बनाऊं, ठीक है। नो, आई आई मेक ओनली द फोन, और मैं जो चार्जर के पॉइंट्स है आई मेक देम कंट्री वाइज। अब अनदर एग्जांपल, एचपी भी ऐसे करता है। एचपी क्या करता है, जो बेसिक प्रिंटर बनाता है, लेकिन जो प्रिंटर की जो पावर कोड है दैट इज डन एट द कंट्री लेवल या लोकल लोकल लेवल। सो गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग कस्टमाइजेशन डाउनस्ट्रीम इन द वैल्यू चेन। जो कस्टमाइजेशन है हम प्रोडक्ट की, they are not done at the centralized location, but customized are being done in the downstream in the value chain. This concept is known as postponement, और इसका दूसरा नाम भी है which is known as delayed differentiation. Delayed differentiation, कि हम सिर्फ प्रोडक्ट का कोर सेंट्रलाइज लोकेशन में बनाते हैं, सो वी मेक द स्टैंडर्ड आइटम, और उसमें जितनी भी कस्टमाइजेशन है वी डू देम एट द लोकल लेवल, और यू कैन से कंट्री लेवल, या फिर सिटी लेवल, वट एवर फिट्स इन अवर सिनेरियो। दिस इज आल्सो नोन एज डिलेड डिफरेंशिएशन। लेट्स नाउ कम टू वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री विच इज VMI। सो गाइस, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री क्या है, कि हमारा जो टोटल इन्वेंट्री है, हमारा जो टोटल जो इन्वेंट्री है वो हम रखते ही नहीं है, ओके, वो हम रखते ही नहीं है। अवर इन्वेंट्री इज मैनेज्ड बाय द सप्लायर। हम अपना इन्वेंट्री अपने पास रखते ही नहीं है। VMI, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री इज व्हाट, हमारा इन्वेंट्री सप्लायर के पास होता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर मेरा, इफ देयर इज प्लांट ऑफ मारुति, ठीक है, अगर एक मारुति का प्लांट है, सो मारुति जो टायर का इन्वेंट्री है वो खुद नहीं रखेगा। सो देयर इज अनदर वेंडर जो टायर का जो बनाता है, ठीक है, टायर का जो बनाता है। सो दिस टायर, अनदर सप्लायर, दिस सप्लायर विल कीप द इन्वेंट्री ऑफ टायर फॉर मारुति। अब गाइस, इससे इससे क्या फायदा होगा, एक तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू मैनेज द इन्वेंट्री। जब नीड है एकदम तुम उसको बोल दोगे अब मुझे इतना भेज दो अगले 2 घंटे के अंदर, एंड दैट विल सप्लायर विल प्रोवाइड टू यू। एक तो ऑफ कोर्स यू विल सेव द कॉस्ट कि तुम्हें खुद इन्वेंट्री नहीं रखना है। Now supplier can also add more value, because now supplier will be doing this activity for Maruti also, maybe for Honda also, maybe for Mahindra also, ठीक है, क्योंकि now supplier is doing the same activity for multiple participant, so supplier अपना efficiency लेके आएगा, because now supplier is managing a larger inventory for multiple customers. Therefore it makes sense that this entire inventory is managed by one person for multiple companies or multiple customers. This is known as vendor managed inventory. समझना कैसे, वेंडर मैनेज्ड, कि इन्वेंट्री वेंडर के पास रहेगी, हम अपने घर में नहीं रखेंगे, हमें नीड होगी तुरंत हम उसको मंगा लेंगे। नेक्स्ट, CPFR। सो गाइस, CPFR stands for collaborative planning, forecasting, collaborative and replenishment, CPFR, ठीक है। सो गाइज, इसका मतलब क्या है, कि जितने भी सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, दे कोलैबोरेट विद ईच अदर, इन व्हाट, इन demand forecasting, in planning, in inventory data. So they just collaborate with each other, so that they have got good visibility of how much inventory other participant is having, how much is the forecasted demand, and what is the plan and everything, what is the production plan, ये भी पता होता है लोगों को across supply chain. So guys, it means what, कि इसका मतलब क्या है, कि अगेन लेट्स कम बैक टू दिस, कि एट पार्ट, जैसे होलसेलर है, होलसेलर इज एट पार्ट 3, तो होलसेलर को मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट में जो हो रहा है,
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो हो रहा है, होलसेलर को पूछने का नीड नहीं है, बिकॉज आईटी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। तो होलसेलर को पूछने का नीड नहीं है, होलसेलर को पहले से पता होता है कि नॉट ओनली कि आज के पास क्या अवेलेबल है, कि अगले 3 महीने में कितना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ताकि होलसेलर भी अपना उस हिसाब से प्लान कर लेता है। सो दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ CPFR, which is collaborative planning, forecasting and replenishment, CPFR, that each member in a supply chain management, they share information on what their future plans are, how much demand is, how much inventory level is, इन सब चीजों के ऊपर, किसकी चीज के ऊपर, they share data, all members of supply chain, management, they share data on कि किसका अभी इन्वेंट्री लेवल कितना है, एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है, फ्यूचर का प्रोडक्शन प्लान कितना है. So this entire data is shared with each other among the members. It's known as CPFR. अब guys, there are different technologies which are used in supply chain management. So one is EDI, electronic data interchange. ये क्या है? Electronic, we'll write it, electronic data interchange. इसका मतलब क्या है कि सप्लाई चेन में जितने भी मेंबर्स हैं सप्लाई चेन में, ठीक है, सो दे हैव गोट देयर आईटी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड, जिसपे सारा डेटा अबाउट इन्वेंट्री, अबाउट डिमांड, अबाउट प्रोडक्शन प्लान, दैट इज शेयर्ड विद ईच अदर. ठीक है. देन अनदर थिंग व्हिच वी यूज इज RFD, or rather RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID. So as RFID को हम कैसे यूज करते हैं? So we use radio waves to identify object. आपने कहीं देखा हुआ एयरपोर्ट पे या कहीं लार्जर वेयर हाउस, जैसे प्रोडक्ट पास होता रहता है, so we keep knowing कि at which stage product is. It is also used by courier company guys. So it uses radio waves to identify कि प्रोडक्ट कहाँ है. इसी का एक पुराना वर्जन है which is barcode. So barcode से स्कैन करके भी हम लोग देख सकते हैं. Then what we use is POS device, point of sale. पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस. इट इज आल्सो यूज की रियल टाइम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा. देन वी आल्सो यूज ERP. ERP इज व्हाट? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. सो ERP के अंदर एक मॉड्यूल होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, where we use this. Of course there are other areas also where you can use the technology. One is your e-procurement. अभी मैं तुम्हें बताऊंगा procurement क्या थोड़ी देर में. So what is e-procurement? Is nothing but buying things online. ठीक है. So these are the different technologies which are used in supply chain management. Let's now go to SCOR. So guys, what is SCOR? SCOR stands for supply chain operations reference model. SCOR, supply chain operations reference model. So guys, so this is nothing but, so there is an organization which is named APICS, Supply Chain Council. Supply Chain Council. So इस organization ने क्या किया है? So this organization has created some processes and matrices. अब इसका क्या करेंगे? So these processes and matrices are used by different countries for what? For identifying, for measuring, for improving their processes of supply chain. इसके 4 parts हैं. So first we plan. Then what do we do? First we plan, then we do, we plan what? We plan our supply and demand. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? Then second step is we source. Source is nothing but procurement. Then third step is make. Make is nothing but production. Then fourth step is deliver. Is it nothing but how you distribute the product?
And fifth and last step is return. It is nothing but your reverse logistics, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, ठीक है। सो इस सारी चीज को मैनेज करने के लिए गाइज, what do? We use certain processes and matrices, and these processes and matrices together are known as SCOR model, supply chain operations reference model. Look at the word reference. Reference का मतलब क्या है कि गाइड है जिसको कंपनीज यूज करती हैं, and this guide has been made by what? APICS, Supply Chain Council. Let's move to third PL. Third PL is what? Third PL is third party logistics. इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे जो भी प्रोसेसेस हैं लॉजिस्टिक्स के, तुम्हारे जो लॉजिस्टिक्स के प्रोसेसेस हैं, दे आर आउटसोर्स टू सम कंपनी. सो योर प्रोसेस ऑफ लॉजिस्टिक्स दे आर आउटसोर्स टू सम कंपनी, दिस इज नोन एज थर्ड. बस इतना ही है कि तुम लॉजिस्टिक्स किसी और से करवाते हो, थर्ड पार्टी, ठीक है. लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब गाइस ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रैक्टिसेस बट विद मोर फोकस ऑन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. अब उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, दैट वी ट्राई टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है. सो जो कार्बन एमिशन है हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. देन रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है. अब ये कैसे होगा? नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज नियर सोर्सिंग. नियर सोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे सप्लायर हमारे एरिया में आसपास है, उन्हीं से हम अपना रॉ मटेरियल या कंपोनेंट पार्ट्स हम लोग उनसे हम लोग खरीद लेते हैं. उससे क्या होगा? द ट्रांसपोर्टेशन विल बी लेस, तो कार्बन एमिशन कम होगा, एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा. सो दिस द कॉन्सेप्ट इज नोन एज नियर सोर्सिंग. ऑफ कोर्स व्हाट एल्स कैन वी डू? वी कैन यूज मोर ग्रीनर टेक्नोलॉजीज अपना काम करने के लिए, ठीक है. देन वी कैन रिड्यूस द पैकेजिंग इज नथिंग बट वेस्ट, ठीक है. देन वी कैन परचेज फ्रॉम दोज सप्लायर्स हु आर ग्रीन सप्लायर. ग्रीन सप्लायर का मतलब है कि वो लोग अच्छी एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस का एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं. सो परचेज फ्रॉम ग्रीन सप्लायर मतलब वो आदमी अच्छे से अपना सारा काम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से करता है, उसी से हम अपना परचेज करते हैं. फिर उसके बाद हमारा जो डिस्पोजेबल प्रैक्टिसेस हैं, दे आर नाइस, ठीक है. देन हाउ आर वी मैनेजिंग अवर रिटर्न्स? रिटर्न का मतलब क्या है? अगर रिटर्न कोई आया, अगर वो डिस्कार्डेड है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, ठीक है. अगर वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या हमें रिकॉल करना पड़ा, ठीक है, या फिर वो ऑब्सोलीट है, पुराना हो गया, हाउ डू वी मैनेज दैट? नाउ गाइस देयर इज अनदर वर्ड कि जो इज गेट कीपिंग. व्हाट इज गेट कीपिंग? कि जब हमारे पास रिटर्न आते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स, वी आल्सो हैव टू मेक श्योर कि हम उन्हीं प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करें जो कि मतलब विच आर एक्चुअली फॉल्टी और ऑब्सोलीट, ठीक है. ऐसा नहीं है कि हम, सो वी हैव टू एंश्योर वी हैव अ गुड स्क्रीनिंग सिस्टम इन प्लेस, ताकि वही प्रोडक्ट हम वापस एक्सेप्ट करें इन द रिवर्स लॉजिस्टिक्स जो कि एक्चुअली डिजर्व करते हैं रिटर्न होना. ये नहीं कस्टमर देता जा रहा है जस्ट टू मेक द कस्टमर हैप्पी, हम सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं. सो दिस प्रैक्टिस of making sure that only eligible products are accepted back, it is known as gatekeeping. Okay, now we come to word which is known as cross docking. So guys, cross docking क्या है कि गुड्स हमारा एक सप्लायर से हमारे पास आया, ठीक है. सो उसको हम अपने वेयर हाउस में स्टोर करने की बजाय अपने गेट पर ही वी अनलोड इट फ्रॉम दैट एंड देन वी सेंड इट टू अनदर ट्रक. सो एक ट्रक से सामान आया सप्लायर से, बजाय कि उसे कुछ दिन हम अपने पास रखें फिर हम आगे भेजें, वो करने की बजाय हम उसको वहीं से we send it to the next participant in the value chain without storing in the warehouse. This one is cross docking. हमने अपने पास रखा ही नहीं हमने वेयर हाउस में, ठीक है. ओके, नेक्स्ट डिसइंटरमीडिएशन.
सो गाइस दिस इंटरमीडिएशन क्या है कि सप्लाई चेन के जितने भी मेंबर्स हैं, राइट फ्रॉम अवर रॉ मटेरियल वाला, होलसेलर, रिटेलर, शॉपकीपर, या जितने भी मेंबर्स है सप्लाई चेन में, देयर कैन बी मल्टीपल होलसेलर आल्सो, लार्जर होलसेलर, स्मॉलर होलसेलर, ठीक है। इन इन मेंबर्स को तुम कम कर देते हो। सो डिस इंटरमीडिएशन मतलब जो बीच के मेंबर्स हैं, यू रिड्यूस देम। उससे क्या होता है, तुम्हारा स्टोरेज कम, कॉस्ट कम होगा, तुम्हारा लीड टाइम कम होगा। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द आईटी वर्ल्ड, राइट। आईटी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर ऑनलाइन। सो तुम्हारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही कोरियर से तुम्हारे पास आ जाता है, न कि द प्रोडक्ट इज कमिंग टू यू थ्रू अ होलसेलर, रिटेलर, जो ट्रेडिशनली होता था। दिस नोन एज डिस इंटरमीडिएशन, कि बीच वाले हमने लेयर्स को हम हटाते जा रहे हैं। ओके, देन ड्रॉप शॉपिंग। सो ड्रॉप शॉपिंग का मतलब क्या है कि मैं जो सप्लायर है वो अपना प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को भेज देगा बिना। सो गाइस मैं क्या हूं, सो आई टेक द, सो मे बी आई एम द सेलर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कस्टमर से मैं एक ऑर्डर रिसीव करता हूं। सो कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, एंड देन आई हैव अ सप्लायर, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सप्लायर, ठीक है। अब ट्रेडिशनल दुनिया में क्या होगा, कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया, हम सप्लायर को बोलेंगे, सप्लायर हमारे पास भेजेगा, हम कस्टमर को भेजेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा, जैसे हमारे पास ऑर्डर आया, हमने कस्टमर को भेज दिया, अपने पास हमने मंगवाया नहीं, सप्लायर से ही कस्टमर को भेज दिया। ड्रॉप शिपिंग मतलब शिपिंग को हटाओ, ड्रॉप शिपिंग, दिस नोन एज ड्रॉप शिपिंग। एंड दिस व्हाट दिस ऑनलाइन गाइज डू। फ्लिपकार्ट वगैरह क्या करते हैं, ऑल्दो दे आल्सो हैव देयर ओन वेयर हाउसेज, बट समटाइम्स व्हाट दे आल्सो डू कि सप्लायर सीधा ही कस्टमर को भेज देता है। दे आर जस्ट मार्केटिंग कंपनी, दे जस्ट रिसीव द ऑर्डर एंड दे ट्रांसफर द ऑर्डर टू द सप्लायर, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब गाइस बीच में मैंने एक दो चीजें जो तुम्हें बतानी थी, लेट्स कम बैक, कि अब जो बुलविप इफेक्ट था कि डिमांड का जो वेरिएशन उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो नाउ लेट्स कम बैक टू कि अब बुलविप इफेक्ट को ठीक करने के लिए हम कर क्या सकते हैं। सो गाइस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच शुड कम टू आवर माइंड, कि ये जितने भी ग्रीन कलर में हमने लिखे हैं जो कोजेज, हम उनको एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो वी शुड ट्राई कि हमारे प्राइसेस स्टेबल हों, ठीक, ताकि जितने भी मेंबर्स है बीच में वो ये सब नहीं करें। सेकंड, अब इस चीज को एड्रेस करने के लिए कि हमारा इनएक्यूरेट फोरकास्टिंग है, या फिर हमारा इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं आया, इसके लिए वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी क्या, वी कैन यूज ईडीआई, जिसमें दो कंपनीज का आईडी सिस्टम जुड़े हुए हैं। वी कैन यूज आरएफआईडी, ठीक है, देन वी कैन यूज बार कोड्स, so that this entire data is completely across the value chain, ठीक है। उसके बाद हम बुलिव इफेक्ट कैसे ठीक कर सकते हैं, कि हमारे कंपनीज के आपस में एक अच्छा सिस्टम है, सो वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, शेयर इंफॉर्मेशन विद ऑल मेंबर्स ऑफ सप्लाई चेन। देन व्हाट वी कैन डू, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए वी कैन यूज अ सिस्टम ऑफ वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, वीएमआई। वेंडर मैनेज इन्वेंट्री से क्या होगा कि हमारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, इन्वेंट्री इज विद समबडी एल्स, देयरफॉर बुलिव इफेक्ट की हम बीच में जो हमारे पास जो वेरिएशन था डिमांड में, दैट क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, देयरफॉर इट विल नॉट कम टू अस, एंड इन्वेंट्री इज बीइंग मैनेज्ड बाय समबडी एल्स, तो बुलिव इफेक्ट विल नॉट इंपैक्ट अस। सो वीएमआई इज अनदर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी किया, कि हम जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं एससीओआर से जो आई हैं, एपीआईसीएस से, अच्छी प्रैक्टिसेस, अच्छे प्रोसेसेस, अच्छे मैट्रिसेस यूज करके हम अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम लोग अपना बेटर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में वी कैन आल्सो यूज ईआरपी, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू इज गाइज, वी कैन यूज द सिस्टम ऑफ जस्ट इन टाइम, ठीक है। अब जस्ट इन टाइम के साथ एक और दूसरा वर्ड है जो कि है डायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या है गाइज, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, कि जैसे ही हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आया उस टाइम हमने अपने सप्लायर को बोल दिया। सो वी एंश्योर दैट हमारा इन्वेंट्री लेवल कम से कम है, और ऑर्डर आने पर ही हम अपना सप्लायर से हम अपना हम रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स लेके आते हैं, एंड देयर इज कॉन्टिन्यूअस रिप्लेसमेंट का मतलब लगातार हमारे पास सप्लायर से चीजें आता रहता है, न कि हम अपने पास इन्वेंट्री रखते हैं।
सो गाइस, जो मैंने ये तुम्हें इतने सारे मेथड्स बताए, 1 2 3 4 5 6 7, so we can use these methods किस चीज के लिए, to make sure that bullwhip effect is not adversely impacting you. ठीक है. सो अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या है, एक और अंदर कीवर्ड बताया, इट इज नथिंग बट जीआईटी ओनली, डायरेक्ट रिस्पॉन्स. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू वन थिंग जो कि हमने अभी स्किप कर दिया था, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या हैं और उनको दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. अब हमें सारा टेक्नोलॉजीज वगैरह सबसे हम लोग कंफर्टेबल हैं. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि चैलेंजेस क्या है. सो गाइस, जनरली चैलेंजेस वही हैं जो कि बुलियन इफेक्ट में हम लोगों ने देखे हैं. ठीक है. उसके अलावा कुछ चैलेंजेस और भी हैं, मोटा मोटा तो वही अपने सारे. तो सबसे बड़ा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज बुलविप इफेक्ट. और उसको दूर करने के लिए हमने अभी वी डिस्कस 6-7 पॉइंट्स जिससे हम बुलविप इफेक्ट दूर कर सकते हैं. ठीक है. लेट्स कम टू सेकंड व्हाट इज द चैलेंज? दैट फेलियर टू डिलीवर. अब गाइस, फेलियर टू डिलीवर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज क्रॉस डॉकिंग. क्रॉस डॉकिंग का मतलब क्या है? कि सीधा सप्लायर से कस्टमर के पास चला जाए. सो वी कैन क्रॉस डॉकिंग विद मल्टीपल सप्लायर, कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज विद मल्टीपल सप्लायर. तो अगर एक सप्लायर ने, इफ वन सप्लायर हैज फेल्ड टू डिलीवर, हम दूसरे सप्लायर को बोल देंगे. सो फेलियर टू डिलीवर को एड्रेस करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव मल्टीपल सप्लायर्स. And then we should also be using cross docking. Sorry, not cross docking. ड्रॉप शिपिंग, कि हमें वहीं से वहीं हम उसको भेज देंगे. तो लेट अस हैव अ टाई अप विद मल्टीपल सप्लायर, और जिसके पास भी होगा, अगर एक के पास नहीं दूसरे पास से, वहीं से हम उसको भेज देंगे. थर्ड वन, कि डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, बट नॉट गुड क्वालिटी. सो दिस इज अनदर चैलेंज. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम अपने सप्लायर का ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम अपने सप्लायर का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन एंश्योर दैट वी डू अ नाइस एक्सेप्टेंस सैंपलिंग. एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या होता है? ऑल्दो देयर इज अ डेडिकेटेड क्लास ऑन एक्सेप्टेंस सैंपलिंग. एक्सेप्टेंस सैंपलिंग क्या है? कि जब प्रोडक्ट हमारे दरवाजे पे आ गया, फिनिश प्रोडक्ट, उसके बाद हम उस लार्जर लॉट में से एक सैंपल निकाल के हम चेक करते हैं कि व्हाट आर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, एंड वी टेक अ डिसीजन की बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ दैट सैंपल हम पूरे लॉट को एक्सेप्ट करें या नहीं करें. दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग. दिस इज डन फॉर व्हाट? क्वालिटी अश्योरेंस, टू एंश्योर कि हमें अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले. उसके बाद लॉजिस्टिक्स डिलेज, दिस अनदर चैलेंज. लॉजिस्टिक डिलेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मे बी यू कैन यूज द मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. हम लोग ये कर सकते हैं. ठीक है. देन व्हाट एल्स, और क्या क्या चैलेंज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के? अगेन, पुअर इंफॉर्मेशन फ्लो विच इज नथिंग बट बुलियन इफेक्ट ओनली. उसके लिए वो सब चीजें अच्छे आपस में आईटी सिस्टम लगाते हैं, सारे वैल्यू चेन में ईडीआई यूज करते हैं, ईआरपी यूज करते हैं, सिस्टम्स को इंटीग्रेट करते हैं. Then there are also risks which are like political risk in a place, or maybe geographical risk. ठीक है. Then we can also have economic risk. इन सारे रिस्क के लिए क्या कर सकते हो? यू कैन डाइवर्सिफाई टू मल्टीपल प्लेसेस. इसको मिटिगेट करने के लिए. सो गाइज, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन एड्रेस देम. पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जब भी दिमाग में आए तुम्हारे कॉन्सेप्ट, उसको ऐसे याद करना है कि बड़े सारे मल्टीपल मेंबर हैं. अगर वो आपस में ठीक ठाक से कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में डेटा शेयर करेंगे, दे विल कोऑपरेट विद ईच अदर, तो वी कैन एड्रेस ऑल दो चैलेंजेस थ्रू दैट अप्रोच. Okay, so that's all from the topic of supply chain management. अभी हम क्या करते हैं? Let us now look at few questions. Okay, the term bullwhip effect is most closely related to what? It is related to demand variation in the demand. Cross docking result in cost saving
एसोसिएटेड विद स्टोरेज स्पेस, क्योंकि हमें अपने पास रखना ही नहीं है। एक ट्रक में से सामान आया हमारे पास, हमने दरवाजे से ही उसको आगे जिसको भेजना है उसको वहीं से उसको भेज दिया हमने। क्रॉस डॉकिंग। Which one of the following is not a requirement of effective supply chain? Information sharing बिल्कुल चाहिए, trust among member बिल्कुल चाहिए, visibility of information बिल्कुल चाहिए. So what is not required is marketing. 3PL is what? थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। मतलब हमने अपना जो लॉजिस्टिक्स का काम है वो हमने किसी और को आउटसोर्स कर दिया। Which one of the following would lead to increased inventory cost? So guys, किससे हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगा? डिसइंटरमीडिएशन से क्या होगा कि बीच में से मेंबर चले गए सप्लाई चेन के, तो इन्वेंट्री कॉस्ट वैसे इससे कम होगा। ठीक है। डिलेड डिफरेंशिएशन ऑफ कोर्स कम होगा। क्यों? बिकॉज वी आर मेकिंग अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड वी आर डूइंग कस्टमाइजेशन एट द लास्ट माइल और डाउनस्ट्रीम इन द वैल्यू चेन, तो इससे भी हमारा इन्वेंट्री का कॉस्ट कम ही होगा। अच्छा, क्रॉस डॉकिंग से, क्रॉस डॉकिंग क्या है कि हमारे पास एक ट्रक आया, हमने उसको रखा ही नहीं सामान, बल्कि उस ट्रक से उतार के दूसरे ट्रक में आगे हमने उसको भेज दिया। अगेन इससे हमें इन्वेंट्री नहीं रखना है। बट किससे बढ़ेगा? बुलविप इफेक्ट से। द इन्वेंट्री कॉस्ट विल इंक्रीज। which one of the following describes disintermediation? Disintermediation क्या होता है कि सप्लाई चेन में से कोई मेंबर कम हो गया। सो एलिमिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मिडलमैन। Which of the following refers to reverse logistics? मतलब ना कि फॉरवर्ड फ्लो, बट देयर इज अ रिवर्स फ्लो फ्रॉम कस्टमर्स अपस्ट्रीम द वैल्यू चेन टुवर्ड्स द सेलर। सो दिस इज डन इन केस ऑफ रिटर्न गुड्स या फिर रिकॉल्ड गुड्स। ओके, so guys, that's all for the topic of supply chain management. Is there anything which you want to ask? Okay, then I hope you understood something. Thank you so much. Thank you.